Okay, so what do we have today? So, in the previous lecture, in our first lecture, we started with our introduction, applied history and research in various fields, and we covered three topics. Okay? If you don't know what are those three topics, you can refer to the previous lecture of history. Today, we are going to cover the same chapter. Moving ahead, we have chapter 3. This is 10th standard lecture number 2. Maharashtra State Board subject is history, applied history and research in various fields. उसमें हम लोग चार टॉपिक्स कवर करेंगे आज, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज. ओके, सो दिस इज बासित सर टू यू, welcoming you to another lecture from your own classes, The Tutors. Now, in the previous lecture, we skipped one topic of technology and we directly moved on to industry and commerce. So we studied about industry and commerce. We are remaining with technology, management studies, arts, humanities. Okay, ये चार टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे and then we will wind up the lecture. As usual, I am not going to teach. ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग भी बोर हो जाते होंगे. हिस्ट्री कौन पढ़ता है इतना, है ना? So technology. The history of technology helps us in understanding the changes and their causes in the field of agricultural production, commodities, production, architecture, engineering, etc. Scientific discoveries, inventions, and technological advancement are mutually dependent on each other. Knowledge of science and technology was very important at every step, from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind. Later, the advancement of science promoted the mechanization of production. It is in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology. Now, what they have told over here is quite simple thing. ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट है नहीं समझने के लिए. टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया है कि टेक्नोलॉजी इज ऑल टुगेदर डिपेंडेंट अपॉन दी discoveries and inventions we experience in our life. Okay, now these discoveries and inventions, these particular two things, this go hand in hand with each other. और जब तक ये discoveries और inventions नहीं होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती नहीं है. Now see, if you take your phone, मोबाइल फोन, ठीक है, तुम लोग अपना मोबाइल फोन आज खरीदो, एक नया मोबाइल फोन आज जाके खरीदो, अगर समझो जस्ट एग्जाम्पल है, आज तुम लोगों ने खरीदा, 4 दिन बाद तुम्हारा फोन खुद ही आउटडेटेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज कोई उसी का अपडेटेड वर्जन कोई दूसरी कंपनी फोन निकालती है एंड यू फील दैट कि तुम्हारा फोन अभी पुराना हो गया. सो टेक्नोलॉजी गोज ऑन एंड ऑन. ओके, सो ये जो पास्ट में जितनी भी चीजें, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजीज आई है इस दुनिया में, तो हम लोग उसके बारे में जब हम लोग हिस्ट्री में स्टडी करते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टोन टूल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल टूल्स, फ्रॉम मेटालिक टूल्स, फिर उसके बाद मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर्स आ गए, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ी आई, फिर उसके बाद बड़े बड़े कंटेनर्स आए, फिर ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड ऑल, जो भी चीज़ है, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि एक टाइम मेटल भी उड़ेगा. सो दैट बिकेम पॉसिबल. सो इट इज लाइक डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विच गेव इम्पेटस एंड पेस टू ऑल दीज थिंग्स. ओके, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, तभी ये सब पॉसिबल है. सो ये सारी चीज़ें जब हम लोग पास्ट में जाकर उनके डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी एंड इट्स अप्लाइड हिस्ट्री. ओके, मूविंग टू मैनेजमेंट स्टडीज, सेकंड टॉपिक. In order to understand various factors involved in the chain of production, such as means of production, human resources and processes of production, as well as the chain of market and sales management, etc., it is essential to have a knowledge of similar functional systems of the past. It is essential to understand the psychological character of people working at the levels in the chain of production and marketing for healthy management, in order to achieve an understanding of the social and economical institutions that support industrial and commercial processes is important. Knowledge of history in this regard makes management at various levels easier. Now, पहले ऐसा नहीं होता था, पर आज ऐसा होता है कि मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ना, every management, every company has a hierarchy, has a level, has something or the other. अगर तुम लोग 11th and 12th स्टैंडर्ड के मैनेजमेंट चैप्टर के लेक्चर्स अटेंड करोगे, then you will come to know कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले ऐसा हुआ नहीं करता था कि मैनेजमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी कोई भी कंपनी या कोई भी लोग, बट आज ड्यू टू द मैनेजमेंट ओनली, होल एंड सोल मैनेजमेंट की वजह से ही
कंपनी अच्छे से चलती है, ठीक है। सो अभी हम लोग कंपनी की बात नहीं करें, ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग। इफ घर का काम बोल दो या स्टडीज़ की बात कर लो, तो हर एक चीज़ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैनेजमेंट अगर उसका प्रॉपर है, देन ओनली वी मेक द वर्क मोर एंड मोर ईजियर। इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी मैनेजमेंट इन एनी ऑफ द वर्क, योर वर्क विल बिकम ईजी एज वेल एज कन्वीनियंट, एज वेल एज इट विल गेट कंप्लीटेड क्विकली। फटाक से खत्म भी हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर होल्ड ऑन योर मैनेजमेंट अब क्या होता है, तुम लोग बोलोगे सर मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करना, कोई भी चीज़ को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से करना, दैट इज नथिंग बट दी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बेसिकली इट डील्स विद दी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल, कि तुम्हारे दिमाग में तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग कोई भी चीज़ को कैसे टैकल करोगे, ठीक है। अगर तुम लोग प्रॉपर्ली उस चीज़ को टैकल करते हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आती है, एंड इफ यू आर टैकलिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी एफिशिएंट वे, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड स्किल ऑफ मैनेजमेंट। तुम लोग कोई भी सिचुएशन को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज आर्ट्स, द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंडिया, ठीक है। आर्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता नहीं है इंडिया में। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस आर्ट फॉर्म्स with the help of their style of expression and their foundation in the form of intellectual, emotional, cultural traditions. The key to expressions in any art form, emotion, temperament of the artist and the developmental history of the respective art form can be understood with the help of cultural history. Now, if we study about the past of the history, past of the arts, if we study about the history of the arts, we will come to know that there are various art forms which have been evolved. अगर तुम लोग देखो कि तुम लोग कितनी सारी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जो पास्ट में लोगों ने बनाए हैं, तो उन सारी चीज़ों को जब तुम लोग स्टडी करते हो, देन यू विल कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, यू विल कम टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज मेड दैट पर्टिकुलर आर्टिस्टिक थिंग। जैसे तुम लोग मोनालिसा की पेंटिंग देख लो, मोनालिसा हैज़ अ फेस ऑफ मैन बट इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ अ वुमेन, ठीक है। एक आदमी के चेहरा है जो वुमेन की पिक्चर बनाई गई है उस पर, प्लस कोई भी ऐसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है मोनालिसा जैसा, ना कोई आदमी का चेहरा ना वैसी औरत एग्जिस्ट करती है। इट इज़ एन इमेजिनरी पेंटिंग एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यू विल से कि तुम लोग सर मतलब तुम लोग देखोगे तो वो पीरियड का जो आर्ट्स है, तुम लोग को उस पर्टिकुलर स्कल्पचर या उस पर्टिकुलर पेंटिंग या वो कोई भी पर्टिकुलर एरा की आर्टिस्टिक चीज़ों को देखकर तुम लोग को समझ में आएगा कि वो क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट हॉट टुडे, ठीक है। तुम लोग को देख के पता चल रहा होगा कि एसी में भी सर को पसीना आता है, ठीक है। ओके, दैट इज़ नॉट एन इशू, हमारा वो टॉपिक है नहीं आज के लिए। आर्ट्स, वी आर स्टडिंग अबाउट आर्ट्स। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे जैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, तो हम लोग देखेंगे आर्ट्स में भी प्रोग्रेस आता गया है। पहले लोग दीवारों पे पेंटिंग करते थे, फिर उसके बाद वॉल पेंटिंग करने लगे, मतलब वॉल पेंटिंग और दीवार पेंटिंग सेम होता है, मतलब अच्छा कैनवस पे पेंटिंग करने लगे। देन केम मेनी डिफरेंट कलर्स। पहले नेचुरल कलर्स यूज़ होते थे, अभी आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ होते हैं। देन बिलीव मी, सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आर्ट्स में काउंट होती है। लाइक आई राइट एंड आई डू फोटोग्राफी, ये दोनों चीज़ें आर्ट्स में काउंट होती है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि आर्ट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। तुम लोग कैमरा की बात कर लो, लेकिन अभी फोटोग्राफी की बात निकली है तो हम लोग बात कर सकते हैं थोड़ा सा कि कैमरा एवरी ईयर कोई ना कोई कैमरा, कोई ना कोई कंपनी निकालती है। देयर आर 3 लीडिंग कंपनीज, निकॉन, कैनन एंड सोनी। ये 3 लीडिंग कंपनी बहुत सारे कैमराज निकालती है। और ये कैमराज में अभी तुम लोग, मेरे पास जो DSLR है, मैंने जिस दिन DSLR लिया था, कैमरा लिया था, उसके 4 दिन बाद एक नया कैमरा आया था एंड माई कैमरा बिकेम आउटडेटेड, ठीक है। वो कैमरा मेरे कैमरे से सस्ता था, बट इट वॉज हैविंग मोर फीचर्स देन माई कैमरा। कैमरा टच स्क्रीन था ऊपर से, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा आग लगी थी, ठीक है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आर्ट्स की फैसिलिटीज़, आर्ट्स के कन्वीनियंस, आर्ट्स परफॉर्म करने का तरीका चेंज हो जाता है लोगों का, ठीक है। आर्टिस्टिक चीज़ें बढ़ती जाती है इस वर्ल्ड में, ठीक है। एज एंड व्हेन वी सी पैसेज ऑफ टाइम, ओके। ह्यूमैनिटीज, humanities include disciplines like history, archaeology,
sociology, anthropology, political science, economics, etc. To understand the history of the origin and development of these disciplines is an essential part of their learning. All disciplines are supposed to have their origin in philosophy. Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence. बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं ह्यूमैनिटीज में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, आर्कियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है. ये सारी चीज़ें जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो वी स्टडी अबाउट ह्यूमैनिटीज. पीपल फ्रॉम द पास्ट टिल नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो हर एक पर्टिकुलर पर्सन इस दुनिया में जो रह रहा है वो कोशिश कर रहा है कि ह्यूमैनिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, हम उसके रिलेशनशिप को फाइंड करें, हम लोग उसके रीजन को फाइंड करें. ओके, कहीं ना कहीं वी आर ट्राइंग टू फाइंड सच थिंग्स विच आई गेस डजंट एग्जिस्ट और वी हैव नॉट येट फाउंड दैट पर्टिकुलर थिंग. हम लोगों ने उन चीज़ों को अभी तक ढूंढा नहीं, हमको मिली नहीं. ह्यूमैनिटी में वही सारी चीज़ें आती है. मेनली हम लोग इसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करते हैं, माइथोलॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर होती है ह्यूमैनिटीज में. ओके, सो दीज वर द 4 टॉपिक्स वी कवर्ड टुडे. अप्लाइड हिस्ट्री, रिसर्च, वेरियस फील्ड में, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट स्टडीज, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. ओके, एवरी टाइम व्हेन आई वाइंड अप द लेक्चर आई गिव सम और द अदर नॉलेज, बट उसमें हर एक नॉलेज कॉमन होता है. ओके, बट वो नॉलेज हम लोग आज शेयर नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सुपर साइक्लोन which came in the eastern coastal areas of India, West Bengal. The cyclone came yesterday. It made a landfall between 4:30 to 5:30, and the wind speed was about 185 kilometers per hour, and more than 1,700 trees has been destroyed. और flooding हो गई है बहुत सारे areas में. कोई भी मरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है. जस्ट बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग एफिशिएंटली ओवर देयर. ममता बनर्जी हैज इवैक्यूएटेड मेनी पीपल फ्रॉम द कोस्टल एरियाज. लगभग 11 लाख लोग वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश से इवैक्यूएट किए गए हैं. एंड मोर देन 1 lakh crore rupees property has been destroyed. So it is quite a huge loss to the property, not to the life, and there has been many videos which are on Instagram and YouTube and Facebook. So please go through those videos. You will come to know the strength, you will come to know the power of that cyclone which has visited India yesterday. ठीक है, so अम्फान, पहले तो ये नाम कौन रखता है उसको ढूंढूंगा मैं. अम्फान है, फोनी है, ये सब नाम कौन रखता है उसको ढूंढेंगे हम लोग. ये सारी वीडियोस अभी जो तुम लोग देखोगे, अगर तुम लोग साइक्लोन वगैरह के तुम लोग देखते हो, तो इट विल मेक यू रियलाइज कि अच्छा है कि हम लोग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं. अरेबियन सी हमारे क्लोज है, जहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन आते नहीं, और आते भी है तो इट डजंट रिकर्व टू इंडियन कोस्टल एरियाज. इट रिकर्व्स एंड गोज टू एनी अदर कंट्री. ओके, थैंक यू सो मच.